کہ بھئی سنو میں تم کو دین دیا، گمراہی سے نکالا، مجھے اب یہ دے دو. نہیں، اللہ نے فرمایا حبیب میں نے رسالت تم کو دی، میں نے نبوت تم کو دی. وہ نبوت کی فضیلت، وہ نبوت کی قیمت، وہ نبوت کا نورانیت، وہ نبوت اور وہ رسالت، اس کی اہمیت اور فضیلت میں جانتا ہوں، تو قیمت بھی میں رکھوں گا. کمال کی بات ہے نا، پروڈکٹ آپ کا ہے، آپ قیمت رکھیں گے. میں بتایا آپ کو کہ بھئی اب اگر کوئی کمپنی ہے تو وہ قیمت رکھے گی، نہ کہ دوسرے قیمت رکھیں گے. مہندرا کی گاڑی کی قیمت مہندرا رکھے گی، نہ کہ کوئی دوسری گاڑی رکھے گی. تو اب اللہ فرما رہا، باریک بات ہے، ہم سمجھتے کہ بھئی یہ سبجیکٹ آپشنل ہے، مطلب کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں. یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، یہ کمپلسری ہے، یہ واجب ہے، اللہ نے واجب کر دیا. اب یہاں نبی نے نہیں فرمایا کہ المودۃ فی القربہ، اگر چاہتے ہی ہو مجھے اجر رسالت کی عوض میں تو تم کیا کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو. نبی نے نہیں فرمایا، نبی نے نہیں فرمایا. آپ سوچیں کہ بات ہے، اللہ فرمایا. اللہ بولا میں جانتا ہوں یہ رسالت کیا چیز ہے، میں جانتا ہوں یہ نبوت کیا چیز ہے، میں جانتا ہوں اے لوگوں اس نبی نے تم کو کیا دیا، اس کی فضیلت، اس کی نورانیت، اس کی حقیقت میں جانتا ہوں، لہذا اس کی قیمت، اس کی اجر بھی میں رکھوں گا. اللہ نے رکھا. اور ہم یہ سمجھے کہ بھئی یہ ایک آپشنل سبجیکٹ ہے، نہیں، یہ کمپلسری ہے. یہ کمپلسری ہے، اہل بیت سے محبت کمپلسری ہے. اس وقت تک یہ آیت نہیں آئی تھی کسی صحابی کو، انصاب یہ مدینہ منورہ کی آیت ہے، وہ نہیں معلوم تھا کہ بھئی یہ ان سے محبت کرنا ہے. جب اللہ کے حبیب نے ممبر پر سے اعلان فرمایا کہ المودۃ فی القربہ، صحابہ کھڑے ہو گئے، بولے یا رسول اللہ کون آپ نے قرابت دار؟ یہ بتا دیجئے آپ نے جو رسالت ہمیں دی اس کا اجر ادا کرنا ہے، ہم کو اس کی قیمت ادا کرنا ہے. اللہ نے حکم دیا نا، تو اب اس کی قیمت ادا کرنا، تو آپ بتا دیجئے کون ہے. تو آپ نے فرمایا علی، فاطمہ و ابناہما، علی اور فاطمہ اور ان کے دو بیٹے، اگر ان سے محبت کریں گے تو میں نے تم کو جو اجر، جو رسالت دی، جو پاکی دی، جو تم کو گمراہیوں سے نکال کے، تاریکی میں سے نکال کے ایمان دیا، اور جو ایک اللہ کی عبادت پر بلایا، اس کی قیمت یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرو. سبحان اللہ، واقعی سبحان اللہ. یعنی اللہ نے، آپ دیکھیں یہ اللہ کا تقاضا ہے، یہ تقاضا یعنی نبی کا نہیں ہے، یہ تقاضا کسی ملا کا نہیں ہے، یہ تقاضا کسی مرشد کا نہیں ہے، یہ تقاضا کسی جماعت کا نہیں ہے. کوئی ایک جماعت، اگر میں نام نہیں لیتا، کوئی جماعت اگر ان سے محبت کا دعویٰ کر کے اگر وہ کرے تو یہ ان کا دعویٰ نہیں ہے. یہ اعلان اللہ نے قرآن میں کیا اور نبی نے اس کی وضاحت کر دی کہ کون آپ کے قرابت دار ہیں. آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ نبی نے بتایا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم اگر کسی کے مرید بھی ہوئے، ہم کسی سے معتقد بھی ہوئے، ہمارے عالم بھی ہوئے، ہمارے خطیب بھی ہوئے، تو وہ یہ چیپٹر پہ روشنی نہیں ڈالتے، کیونکہ یہ تو مین ہے، اجر رسالت کی بات ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. پھر نبی نے کیا فرمایا؟ اب آپ دیکھیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ سنو میری اہل بیت سے محبت کرو، محبت کرو. یہ تمہیں 7 جگہوں پر یہ تمہاری کیا ہوگا، تمہارے لیے آسانی ہوگی اور تمہاری مدد کی جائے گی. 7 جگہوں پہ آپ نبی فرما رہے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث مکرمہ ہے، ہم قافل ہیں 7 جگہوں پہ. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی عند الموت، بلے جب موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے گا اور تمہارا تعلق تمہارے اعمال سے منقطع ختم کر دیا جائے گا، موت کا فرشتہ تمہیں نظر آئے گا، اور پھر وہ فرشتے نظر آئیں گے جو تمہاری روح لینے آئے، اور پھر اس دنیا سے تمہارا تعلق آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائے گا. اور یہ وہ شیطان ابلیس ہے. نبی نے فرمایا کہ ہر وہ وقت، ہر آدمی کے آخری وقت وہ موجود ہو جاتا. وہ کام وہ
ताजा था। आप अंदाजा लगाए कि हर वक्त हर आदमी जो मरेगा तो इब्लीस वहां पर आ जाएगा और फिर क्या करेगा, अब जब वो तौबा के लिए तो सोचेगा कि भाई ये गुनाह हुआ था, मेरी मौत आ गई, ये फरिश्ते नजर आ रहे और फिर ये घर वाले नजर आ रहे, तो अब तौबा कर लूं। वो इंसान की शक्ल में मौजूद, हाथ में उसके एक आदमी जो मरने वाला होता, उसको शिद्दत की प्यास लगती, तो वो सोचता कि भाई पानी, बोले मेरे पास पानी है, तुम गम मत करो, तुम कोई गुनाह नहीं करे। तुम नहीं जानते कि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो तुमने क्या किया, अल्लाह ने जो लिखा वो तुमने किया। अल्लाह ने लिख दिया था कि भाई फला गुनाह, तो तुमने गुनाह किया। तुम्हारी क्या औकात है कि अल्लाह से हटके करे? ये उतना आप अंदाजा लगाओ, फरिश्तों का उस्ताद था और आलिम था, वो ये काम किया, तो आप अंदाजा लगाओ उससे बहस कौन करेंगे? तो नबी ने फरमाया इन्नल मौत, जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो वक्त क्या होगा, वो वक्त उसकी ऐसी मदद की जाएगी कि वो इब्लीस भाग जाएगा और उसकी जबान पे कलमा आ जाएगा। इन्नल मौत, ये अहले बैत है, आप अंदाजा लगाओ, इनसे मोहब्बत यानी क्या है, मौत को आसान ही कर देती और कलमा नसीब फरमा देती। फिर क्या है आप देखें, फिर अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, एक हो इंदल कब्र, जब कब्र में रख के लोग तुम्हें चले जाएंगे तुमको छोड़ के, तो फिर क्या होगा, अंधेरी खबर, कोई नहीं मदद करने वाला, कोई नहीं। तो फरमाया अल्लाह के हबीब ने इंदल खबर, और जब खबर में उतारा जाएगा जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा और उसकी मोहब्बत की नूर और रोशनी में उसकी खबर मुनव्वर हो जाएगी। दूसरी अल्लाह के हबीब ने 4 7 उसमें से 2 हो गए। आप अंदाजा लगाए कौन खबर, आप देखें कि कैसे से कैसा बड़ा आदमी होगा, खबर में डालने के बाद हर कोई आदमी वहां से लौट जाएगा। फिर मैं जब बात आई तो बात करते चलो कि हम जुम्मे में ये खिताब इसलिए करते, हमारी नॉलेज औजुबिल्लाह बताने नहीं, एक पैगाम देने के इस्लाह हो जाए, इल्म मिल जाए, और अगर कोई चीज हमसे छूट रही तो वो मिल जाए, अगर कहीं गलती हो रही तो दुरुस्त हो जाए, दीन मुकम्मिल हो जाए, अपने आप मुहासिबा हो जाए, इसलिए बयान करते। अब रिवायतें आ गई कि वजह से खबर में डाले, दुआ करे, भागो खबर में से, बोले क्यों, 40 कदम भागो। अब आदमी वहां ठहरा हुआ तुरंत आ जाओ तो वो 40 कदम में दुआ करे भाग। अब नबी ने क्या फरमाया, नबी ने ये नहीं फरमाया कि उसको छोड़ के भाग जाओ, नबी ने फरमाया कि सुनो कि या रसूलल्लाह, ये मुर्दे को दफनाने के बाद में, बुखारी मुस्लिम की हदीस, कब तक बैठना चाहिए? आपने फरमाया जब तक बैठो ऊंट ज़ुबाह करे और फिर तकसीम हो जाए, ऊंट ज़ुबाह करके और उसके टुकड़े हो जाए, फिर वो तकसीम हो जाए, 2 से 3 घंटे तो लगेंगे। ऊंट आप अंदाजा करो, जब तक उस खबर पर बैठो, इसलिए कि तुम्हारे मुर्दे को जब तुम खबर में दफनाने थे उस वक्त तुम्हारी कड़ी जरूरत महसूस होती, तुम्हारी दुआओं की, तुम्हारे जिक्र की और तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ की, तभी उसको जरूरत महसूस होती, इसलिए कि वो अपने आप को तन्हा पाता और फिर वो देखता। नबी ने फरमाया कि वो अपने खदमों की आहट सुनता और वो देखता कि भाई मैं मर गया, ये मेरे दोस्त अहबाब दफना दिए, इधर से मुनकिर नकीर आए, और फिर वो परेशानी के आलम में तब अगर वहां बैठ गए और अल्लाह के रसूल का जिक्र करे, अल्लाह का जिक्र करे, अहले बैत का जिक्र करे, तो खबर वाले को क्या होगा, तभी बात की बात नहीं, उसी वक्त उसके खबर में नूर भी आ जाएगा और उसकी बख्शिश भी हो जाएगी और मुनकिर नकीर के सवालात भी आसान हो जाएंगे। अब हमारे पास तो नहीं रिवायत, कौन डाल जाने वाला, भागो और उधर पूरी, अरे बैठो, भागने का नहीं, बाद में खाना खाओ, हाजिरी का खाना है। तो पहले तुम वहां बैठ के उसके लिए दुआ तो करो, तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारा रिश्तेदार था, तुम्हारा खैर ख्वाह था, तुम्हारे साथ मिलने वाला था, तुमने नमाज पढ़ी, दुआ तो इमाम ने कर दी और फिर तुम खाने पे ले आए, वहां डाल दिए, वहां भी आमीन, वहां बैठ के पर्सनल दुआ करो, जिक्र बुलंद करो, तो ये किसको नसीब होगा? जो अहले बैत के दर पे बैठेगा उसको ये मालूम हुआ कि इंदल खबर में ये इनकी मदद होती। कैसी होती? जब इनके दर पे बैठे तो इल्म आया। अब आपको इल्म आया, अब आपके पास किसी की मैयत हो गई या किसी दोस्त की, अब बोलेंगे भाई ठहरो, भागो न को, या हम यहाँ आने से वो फरीद मुनकिर नहीं, डरते नहीं हमारे से,
हम वहां ठहरने से क्या मुमकिन नहीं कि डर जाते आने से, कि अगर वैसा रहता तो वहीं बैठते थे अपन। फिर किसी ने नहीं डाला हुआ, डाल दिया किसी ने, बस हम सुन लिए, लिख दिया, लिखने वाले ने, आ गई हमारे पास, इस्लाह की तो बात है ही नहीं। अब उसके बाद में फिर अल्लाह के हबीब ने फरमाया दो हो गए। फिर अहले बैत की मोहब्बत, मैं बता रहा हूँ कि यानी अब जो आयत मुबारक थी कि खराबतदारों से मोहब्बत करो, कि फिर ये जो अजर रिसालत, उसकी बात फिर अल्लाह के हबीब ने फरमाया इंदल महशर, और रोज महशर किसी को कोई साया नहीं, हर आदमी नफसी नफसी के आलम में अपने गुनाहों की वजह से अपने पसीने में शराबुर और कोई साया ना होगा। फिर नबी ने फरमाया अली अली सुन, तेरे लिए खुशखबरी है, खुशखबरी। अब अली तो दूसरों के है हमारे पास, तो अब अली सुन, तेरे लिए खुशखबरी है, तेरे चाहने वालों के लिए खुशखबरी है, रोज महशर कोई साया ना होगा, लेकिन तेरे चाहने वालों के लिए अल्लाह उनको अर्श के साए में रखेगा और उनको बेहतरीन मलबूसा यानी लिबास के साथ होंगे और बड़ी शान के साथ होंगे। आप देखिए, ये हदीस मुकर्रमा है, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि मौलाए कायनात से मुताबिक कि ये अहले बैत है, इनसे दूर हो जाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, आप अंदाजा लगाओ। फिर ये हो गई तीसरी, फिर आपने इरशाद फरमाया इंदल किताब, जब हाथ में, सीधे हाथ में अगर नामाए अमाल मिल गया कामयाब, आप अंदाजा लगाएं कामयाब, अगर नाउज़ुबिल्लाह दावे हाथ में मिला फिर नाकामयाब, तो फिर अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि उसकी मदद जब की जाती कि उसका नामाए अमाल जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा उसका नामाए अमाल उसको सीधे हाथ में दिया जाएगा। कितनी अल्लाह के हबीब की आप अंदाजा लगाओ कि इस अल्लाह के रसूल को कोई फायदा नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, इमाम हसन इमाम हुसैन को कोई फायदा नहीं, इनसे मोहब्बत हमारे लिए फायदा है, दुनिया में भी फायदा है, आखिरत में भी फायदा है। जिनके लिए आप अंदाजा लगाओ कि दुरूद में जिनको शुमार किया गया और बगैर दुरूद के नमाज मुकम्मल नहीं होती, तो आप अंदाजा लगाओ जिसको नमाज में रखा गया और नमाज के दुरूद में रखा गया, वैसी हस्ती से अगर मोहब्बत नहीं करोगे तो किससे मोहब्बत करोगे? उनसे मोहब्बत क्या करेगी? आपके अल्लाह अकल और फहम को खोल देगा और अल्लाह क्या करेगा? दुनिया में भी भलाई, आखिरत में भी भलाई अता फरमाएगा। तो आपको बताया था कि भाई ये चार हो गए। फिर फरमाया अल्लाह के हबीब ने कि फिर पांचवा वो है कि जब मीजान में नामाए अमल तोला जाएगा उस वक्त अल्लाह पाक क्या करेगा? हर एक के नामाए अमल तोले जाएंगे, क्या गुनाह किया, कैसा किया और किस अंदाज में जिंदगी गुजारा, वो तमाम उसके एक एक गुनाह का हिसाब, एक एक नेकी का हिसाब तोला जाएगा। और उस वक्त अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि अगर उसके गुनाह ज्यादा हो गए, नेकी कम हो गई, फिर उसकी मदद की जाएगी। इनकी मोहब्बत की वजह से उसके नेकी का पल्ला झुक जाएगा। अब ये क्या हो गया? अब ये छठा हो गया, आखिरी है। आप देखें, फिर फरमाया कि वो जब तमाम, अब अंदाजा वो क्या बात होगी, है अल्लाह के तूने हिसाब भी ले लिया, किताब भी ले लिया, अब जाना है जन्नत में, तो ऐसे ही जाना है? बोले नहीं, पुल सिरात पे से जाना है, पुल सिरात। फिर आ गया, फिर एक माहौल आ गया कि उसके नीचे दोज़ख और कट के गिरे नीचे दोज़ख में पार हो गए, जन्नत मिल गई। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया आखिरी दर्जा वो है कि अहले बैत से मोहब्बत का सातवां ये इनाम है कि पुल सिरात पे से ऐसे गुजरेगा जैसे बिजली गुजरती है। ये मोहब्बत आप अंदाजा लगाओ, अल्लाह के हबीब ने, अब अल्लाह के रसूल की अहले बैत से मोहब्बत ये इनाम देती। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, और आप देखें इनके मंगते कौन होते, इनके जो गुलाम होते, इनके मंगते